میں سر کو دوبارہ سے جو ہے وہ لائیو لینے کی کوشش کر رہی ہوں. سو پلیز گائز. اوکے تب تک میسیجز بھی پڑھ لیتے ہیں. یو آر سو بیوٹیفل. اوکے تھینک یو, بہت شکریہ. ہم نجم سر کو Allah is happy with you and He's blessed you with a beautiful daughter, mashallah. Yes, thank you, Ryan. It's okay, sir. No problem. You are so beautiful. Thank you. اچھا جی سر تھوڑے میسیجز پڑھ لیں. سر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی آپ پلیز یو ٹیل یور اسٹوری اینڈ آئی ول لک ایٹ دی میسیجز. اوکے super proud of you, many prayers for you, sister. Can't hear you. Amen Fatima, may Allah keep you happy always. Bia kehti hai, dear, I feel that you're telling my story. Oh wow, mashallah. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں چل رہا ہے. مجھے اچھا how important is to give yourself some time, like hand brake کھینچ کے ذرا میں گاڑی روک کے ذرا چیک تو کروں میں کہاں جا رہی ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, یا بس go with the flow اور کئی سال گزر جائیں اور پھر پتہ لگے کہ سب گزر گیا. کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا تھوڑا سا رک کے ریویو کرنا اپنی لائف کو اور اپنے آپ کو. how important is that? سر مجھے لگتا ہے کہ یہ ریویو ٹائم ہی تھا اور یہ ریویو ٹائم ابھی بھی چل رہا ہے. اگر ہم ابھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں ریویو کا موقع دیا ہے, یہ جو کووڈ سچویشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پلیز اپنے آپ کو ریویو کر لیں سب لوگ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کتنے ورسٹ ہو سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنے ورسٹ ہو سکتے ہیں, اس سوسائٹی کے لیے کتنے ورسٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے ملک کے لیے کتنے ورسٹ ہو سکتے ہیں. اور بینگ اے مسلم اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ تو ایمان سب رکھتے ہی ہیں, تو اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں کہ ہم صرف پوری زندگی بولتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ریویو کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آج کے دن میں. اور اس کے بعد ریویو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, سیلف کریکشن, اپنی ریئلائزیشن کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم ایسے کیا اعمال کریں, ہم ایسا کیا کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو ہم سے اور اس کی بلیسنگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. Is this your first Ramadan? Yes, بالکل. یہ with new life? Yes, یہ رمضان تو میرے لیے بہت اسپیشل ہے. میں نے بلکہ لکھا بھی تھا اس وقت کہ کیونکہ پہلا رمضان میرا گزرا ہے لاسٹ ایئر والا, وہ سر بہت ڈپریسنگ تھا, بہت زیادہ ڈپریسنگ تھا. میں کسی ریزنس کے روتی تھی, مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں, میں کہاں ہوں. وہ کورونا بھی تھا اور ایک عجیب سی لائف میں سیڈنس تھی اور ڈپریشن تھی. اور اس سال میرا رمضان مجھے لگ رہی ہے کیوں اتنی جلدی جا رہا ہے, کیونکہ بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے اور میں سب سے زیادہ سیڈ کہ یہ رمضان جو میں کر رہی ہوں, اس رمضان میں اتنی سب چیزیں جاننے کا موقع مل رہا ہے, بڑی راتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہ رمضان اتنی ہی جلدی جا رہا ہے اور پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا کیا ہوگا. چاہے نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, چاہے آپ کی روٹین کوئی بھی ہے, یور فل ٹائم مدر آلسو, لیکن اسپرٹ آپ کی جو ہے وہ اسپرٹ ایک ہی اسٹیبلٹی کے ساتھ جا رہی ہے, رائٹ؟ بالکل. ٹائم تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کی 1 سال کی بچی ہوتی ہے بیبی, تو ٹائم تو ہے وہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزرا. تو لیکن یہ رمضان میری لائف کا سب سے بیسٹ رمضان رہا ہے, سب سے بیسٹ رمضان. اس رمضان میں نہ صرف میں نے چیزیں سیکھی ہیں بلکہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے اوپر کام کروں, میں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھوں, اپنی ڈیوٹیز کو سمجھوں, اور اس رمضان میں میکسیمم سیلف کریکٹ کرنے کی کوشش, اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر سکوں. ایمن فاطمہ کہتی ہیں an inspiration ماشاءاللہ. آصف کہتے ہیں Ramadan is a game changer, life changer. Someone very sensible said
اور جزاک اللہ, اللہ آپ کو ثابت قدم کرے, آمین. صبا کہتی ہے may Allah subhanahu wa ta'ala also give highest rank of Jannah to Zara Abid, آمین. ملیحہ جبار کہتی ہیں کہ I missed the live session, could you please save it? Also I'm so happy for you, alhamdulillah, you're a chosen person. Allah Ta'ala must love you for bringing you on the right path. Much love. And 10336 says اللہ پاک کو آپ پسند آ گئی ہو تبھی آپ کا دل بدلا ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے فیصلہ کیا ہے, یا اچھا اللہ نے تو سب کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ نے اس کا کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ وہ یہدی الیہ من اناب, اگر تم رجوع کرو گے تو میں ہدایت دے دوں گا. کھانا پینا, شہرت, جوانی, آکسیجن, ایوری تھنگ جو اس نے دنیا میں رکھی ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, وہ سب کو ملتا ہے. لیکن ایک چیز کے لیے اس نے کرائیٹیریا رکھا ہے کہ ہدایت جو ہے, میری دوستی, کمپینین شپ, میرا نالج, میرا وزڈم, میری لائٹ, وہ صرف تب ملے گی when you ask for it. So میں اس لیے یہ I wanted to bring it up کہ آپ نے چونکہ مانگا ہے اللہ سے, آپ نے رجوع کیا ہے, you asked for his answers, اس لیے اس نے آپ کو چوز کیا ہے. ورنہ تو وہ سب کے گھر میں ہے, سب کی شارک کے قریب ہے, اس کا قرآن سب کے گھر میں پڑا ہوا ہے, لیکن کیا سب کو اتنی طلب ہے جتنی طلب آپ کو تھی, یا جیسے آپ ڈھونڈ رہی تھی؟ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ دنیا کا بیسٹ دسترخوان بھی سامنے رکھ دیں, you will not eat it because آپ you're not hungry. تو یہ میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ it has to begin from your own self کہ مجھے چاہیے, I want to know, پھر اللہ دیتا ہے, اللہ دینا چاہتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ بھی کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس خود جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمارے گھر پہ نہیں. تو جب آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ ڈپریشن میں ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لائف میں کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا. ہم کیونکہ وہ بھوک ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مٹا سکیں. لیکن اگر وہ ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی, اس کے لیے ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو, اس کی امپورٹنس کو جانیں, کہ وہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو واقعی یہ سچ بات ہے, اللہ تعالیٰ تو سب کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کے پاس تھوڑی, اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے, اللہ تعالیٰ سب کے گھر پہ قرآن کے تھرو سب کے پاس ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ تو سب پیار کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جو مانگتا بھی نہیں ہے, اس کو جو اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتا, اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ, کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ تو سب کو دے رہے ہیں. واو. سو مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی باتوں سے, اور آپ کی جو چہرے پہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایکسائٹمنٹ, سو اس کا مطلب ہے سارا مسئلہ تو یہاں کا ہے کہ جو ہمارے جو موڈ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں دن میں 25 دفعہ, جو ہے اوپر نیچے, ڈپریشن, انگزائٹی, پھر ایکسائٹیڈ ہو گئے, پھر پارٹی کی, پھر اس کے بعد واپس آ گئے, پھر ڈپریشن میں چلے گئے. اچھا, آپ کی جو اندر مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو فیل, اگر آپ کمپیئر کریں اس وقت کے ایموشنز اور مائنڈ میں کیا چلتا تھا, اب کیا چلتا ہے, کیا فرق ہے؟ سر جو اوور آل میں اگر ریویو کروں کہ قرآن سے پہلے کی تو لائف میں نے شیئر کی, لیکن قرآن کے بعد جو میں نے چیزیں جانی قرآن سے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ پہلے میں سوچتی تھی کہ میں بہت لوگوں کو غلط سوچتی تھی, بہت سمجھتی تھی کہ چیزیں غلط ہیں, دیکھو میں تو بہتر ہوں ان سے, ایٹ لیسٹ میں یہ چیزیں نہیں کر رہی, کیونکہ میں نے اپنے رائٹ اور رانگس بنائے ہوئے تھے نا. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں میں ٹھیک کر رہی ہوں تو میں ان سے بہتر ہوں. جب قرآن لائف میں آیا تو مجھے چلا کہ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, پہلے تو اپنے اندر کو, اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے بعد میں کسی کے اوپر کوئی بات کر سکتی ہوں. تو یہاں تو پہلے یہ سمجھ آ گئی کہ سیلف کریکشن کرنا بہت ہی ضروری چیز ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ اتنا سکون مل گیا قرآن کے بعد, وہ سمجھ
समझ आने लगी है शायद कि वो सुकून मिल गया, पता नहीं, क्योंकि मेरे पे बहुत कंट्रोल, मुझे गुस्सा बहुत क्या आता बहुत बड़ा कोई चेक आ गया है या कोई जैकपॉट लगाया, कोई बॉन्ड निकल आया आपका? व्हाई यू सो है। हैप्पी? मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, लिटरली प्राइस बॉन्ड ही निकला है। और प्राइस तो अल्लाह की किताब निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। और जब कुरान लाइफ में आया तो सारी चीजें ही जो मेरी बनाई हुई सही थी ना, वो अल्लाह ताला ने क्रॉस कर दी कि वो ठीक ही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, जो डू मुझे, यू रिग्रेट इट और डू यू फील बेटर? नो आई एम फील, अफसोस? नो सर, मेरा एंगर इशू था, मेरा कहीं ना कहीं थोड़े ईगो प्रॉब्लम्स थे, मेरी मेरे अपने जो जो मैं आपके अंदर एक आदत सी हो जाती है, हम छोटे छोटे गुनाहों को गुनाह नहीं समझते हैं, हम राइट। हम ये छोटी सी बात है, लेकिन वाकई छोटी बात नहीं होती है वो, उससे कोई हर्ट हो सकता है, उससे कोई किसी को कोई बुरा लग सकता है, कुछ भी एक गैप आ सकता है। तो वो चीजें, मैं अभी भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मुझे बहुत सी चीजें मुझे ठीक करने वाली हैं मेरे नफ्स के अंदर। और अपने नफ्स को झुकाना, सजदे के साथ, जो नमाज में सजदा करते हैं उसके साथ अपने नफ्स का सजदा करना बहुत जरूरी है। तो वाओ। बात आई है कि सर नहीं साथ जो है वो अपने अंदर अंदर जो अल्लाह ने एक रूह डाली है और नफ्स डाला है जिस पे शैतान ने पूरा काबू किया हुआ है, वो कैसे झुकाना है। तो ये सब चीजें मैंने कुरान से सीखी हैं, और उसमें 100% क्रेडिट आपको और बाबर सर को जाता है, क्योंकि आपके आपने एक चीज नोट की कि जब समझ में नहीं आती थी नमाज, और लेकिन हम पढ़ रहे होते थे, तो उस वक्त सारी प्लानिंग चल रही होती थी नमाज के बीच में कि इसके बाद मैंने ये करना है या वो करना है, पूरी लाइफ चल रही होती थी, और जुबान से अरबिक हम रिसाइट कर रहे होते थे। बिल्कुल। लेकिन जब वो चेंज होता है और आपको पता होता है कि मैंने क्या बोल दिया है, मैंने क्या कहा है, मुझे क्या जवाब मिला है, और फिर आप रुकू और सजदा करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि नफ्स और बॉडी दोनों सजदे में गए, वही वजह है मेरे ख्याल है कि आप इतना रिलैक्स और स्टेबल हो गई है। एक बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हयात खान कहते हैं अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। रेहाब अमजद कहती है विदाउट ईमान इट्स लाइक लाइफ इज गोइंग ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम it feels like we are stuck in some kind of situation where we can't get ourselves out. हफ्सा इलियास कहती है बेशक हिदायत रुजू करने वाले को मिलती है। वानू कहते हैं you're so lucky because आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, I am proud of you. रेहाब फिर कहती है कि it feels like we are living without any purpose, just going with the flow, not knowing where life takes us. अमिफ्रा खान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है। जुबैर कहते हैं हाउ डिड योर फ्रेंड्स रिएक्ट टू दिस ट्रांजिशन? पहले इसका जवाब दे दें तो फिर आगे चलते हैं। हाउ डिड दे रिएक्ट योर फ्रेंड्स? सॉरी, जुबैर ये कह रहे हैं कि हाउ डिड योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त, रिएक्ट टू योर ट्रांजिशन? सर क्या बोलूं इसके बारे में, क्योंकि मुझे कुछ इतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। मैं बहुत क्लोज एक दो लोगों को तो शायद मेरी कुछ एक दो स्टेटसेस पसंद नहीं आए, उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर दिया, और वो मेरी इंटेंशंस को असल में समझ नहीं पाए। मैं तो यही, और कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे भी हैं, और वो मेरे साथ हैं, मुझसे इन टच होते हैं, बात होती है हमारी। और लेकिन बाकी मेजॉरिटी ऑब्वियसली वो ऐसे जोन में है कि वो इग्नोर कर रहे होते हैं चीजें। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ दोस्त हैं, वो सिर्फ एक इग्नोर वाले मोड में है अभी। सो इट्स फाइन, ओके। आई कैन अश्योर यू, एक चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत जल्द उनको ये एहसास होगा कि आप और अच्छी दोस्त हैं उनकी, अब आप और ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ज्यादा सिंसियर दोस्त हैं अब आप, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम जो है वो
एकदम हजम नहीं होता, क्योंकि एक मैंने जब फर्स्ट टाइम सिगरेट छोड़ी थी तो हर दोस्त ऑफर कर रहा था, यार एक तो पी ले यार, एक तो पी ले यार। तो यू नो आपको अजीब लगता है कि यार हम क्या गलत हैं, ये क्यों उधर जा रही है और ये वो, बट वो इवेंचुअली जब उनको ये रियलाइज होता है कि यार ये पहले से ज्यादा बैलेंस्ड, ये कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये पहले से ज्यादा खुश इखलाक और सॉफ्ट हो गई है, तो फिर वो आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। जुबैर एक और सवाल कर रहे हैं, एमन कहती हैं, वेल सेड माशाल्लाह, आई फील सो मच बेटर आफ्टर ज्वाइनिंग अर्रहमान अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीहा कुरैशी कहती है, यस अर्रहमान अर्रहीम इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। जुबैर कहते हैं, ऑल्सो ऑन अ पर्सनल लेवल, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड गिवन दैट यू आर अ मॉडल? तो पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंजेस आए आपको? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, आप तो खैर you were mashallah, just to show up you were getting paid, हम तो अपना म्यूजिक और वो चीजें कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आपका माइंड आदी हो जाता है फॉर रिकग्निशन, आपका माइंड आदी हो जाता है फॉर प्रेज, टू लुक ग्रेट ऑल द टाइम। आप जब भी कहीं निकले, जब भी जाएं, you should be at your best. So आपके चैलेंजेस क्या थे? सर, जो लोग शायद जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत पैशनेट थी अपने काम को लेके। मतलब कहते थे लोग कि मैं जो हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल मॉडल हूँ, ये मेरे लिए लोग कहा करते थे, क्योंकि तो मुझे वो बहुत प्राउड फील होता था कि अच्छा आई एम समथिंग। और यही मेरे लिए चैलेंज था असल में, कि मुझे वो जो ये मेरा चैलेंज था कि जो मुझे एक अच्छा लगता है ये सुनना, जब वो मैं नहीं सुनूंगी, या वो जो अपनी पसंद के कपड़े पहनना मुझे पसंद था, वो जब मैं नहीं पहनूंगी, तो ये सब चैलेंजेस थे मेरे लिए। जब मैं अपनी वो पसंद के जैसे मुझे जैसे जाना आना मिलना, मेरा जो एक लाइफस्टाइल था, जो मुझे जिसकी मुझे आदत भी हो गई थी, और जो मुझे अच्छा लगता था, जो मेरी पर्सनल डिजायर्स थी, इसको मैं बोलूंगी ये मेरी पर्सनल थी, इसमें अल्लाह की कंफर्मेशन मैंने कभी शामिल नहीं की थी। ये सब मेरे अपने चूज की हुई चीजें थी। और वो मेरा चैलेंज था कि मैंने इन सब चीजों को हटाना है, और फिर ही अल्लाह ताला मिलेंगे, क्योंकि जब आपने अल्लाह को पाना होता है तो वो उन चैलेंजेस से तो गुजरना ही पड़ता है। और ये चैलेंजेस मैंने फेस किए, और मैं इस तरह से कहूंगी कि सर मैंने खुद अपने अंदर बस एक कंट्रोल, क्योंकि मुझे सुकून ज्यादा, मैंने दोनों चीजों में से चूज की कि सुकून चाहिए या ये चीजें चाहिए। ओके सो ओवरऑल किया, यानी मैं ये समझाऊं कि एक होता है कामयाबी, और एक होती है कामयाब जिंदगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कामयाबी तो बहुत लोगों को मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन, रॉबिन विलियम्स, विटनी ह्यूस्टन, प्रिंस, ये सब के सब की डेथ जो है वो ओवरडोज के साथ है। जी। हालांकि ना पैसे का इश्यू, ना फेम, सब कुछ था, राइट? एवरीथिंग, फिर भी ओवरडोज क्यों हो रही है, या रॉबिन विलियम्स जो है वो उसने सुसाइड कर लिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी और कामयाब जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। सो यू चोज कामयाब जिंदगी, कामयाब जिंदगी। तो वो जो दोनों चीजों का आप कंपैरिजन करेंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपकी अपनी डिजायर्स हैं, अपनी पर्सनल डिजायर्स हैं, जब आप उनको अपने सुकून के साथ और कुरान के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सुकून कहाँ है। तो ऑब्वियसली इंसान नहीं चाहिए ना, वो तो सुकून का ही रास्ता पिक करेगा, वो ऐसा रास्ता चूज नहीं करेगा जिसमें हमेशा हलचल हो, और आप अपनी एक दौड़ में लगे, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। इसका मतलब है ऐसा भी देखा जा सकता है इसको कि at the end of the day you start living for others and not for yourself, right? Yeah, that's so true. बिल्कुल। आप शुरू होते हैं खुद को accomplish करने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि you start pleasing the industry, you start filling जिसे कहते हैं ना, डिमांड को फुलफिल करना। डिमांड को फुलफिल, एक हर वक्त एक प्रेशर में रहना कि वो नाराज
ہے وہ ناراض ہو گیا تو یہ والا کام خراب ہو جائے گا، اور وہ ٹھیک نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا. سو اب آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اب آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، رائٹ؟ اب مجھے لگتا ہے میں آزاد ہوں. آئی ایم فری. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے پاس آنے کا مطلب ہے کہ بس آپ غلام ہو گئے. اور ایک بڑا زبردست میسج آیا ہے کہ ٹرننگ بیک ٹو اللہ از ریئلی امپورٹنٹ. وداؤٹ دیٹ وی ول اونلی اسٹرگل اینڈ نیور گیٹ ریڈ آف برڈنز. یہ رحاب کہتی ہے. اچھا، وانو کہتے ہیں کہ یو چوز رائٹ وے، یو آر لکی. چینج ہونے کے لیے بہت ہمت چاہیے. بولنا ایزی ہوتا ہے بٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بٹ آپ نے کر کے دکھایا. پھر رحاب کہتی ہے سیلف کریکشن از آلسو دا وے اللہ از آنسرنگ آور دعا. پھر ایمن فاطمہ کہتی ہے قرآن از سچ اے بگ بلیسنگ آن us all, mashallah, proud to be a Muslim, alhamdulillah. And these are all youngsters. Wow. یہ سب بچے. آپ کے فیس پر نور آ گیا ہے اب. The less attachment to the world, easier your life. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. انیلا کہتی ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہتی ہے چھوٹے گناہ ہمارا ڈاؤن فال بن سکتے ہیں، جو آپ نے کہا تھا. بالکل بالکل بن سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے پھر ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے. واو. اچھا، یہ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں مجھے. جبران رحیل، سنا آپ نے کبھی نام جبران رحیل؟ جی جی سر، بس سنتی رہتی ہوں ان کا نام میں سنتی رہتی ہوں. یہ میرے گھر میں رہتے ہیں اصل میں میرے گھر میں ہی رہتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے ان کا. اور ہی سیز ماشاء اللہ. ایک ہسبینڈ کا جو ہے وہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد ماشاء اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دل سے آ رہی ہے. جی سر، اور یہ میں ایک کریڈٹ جبران کو ضرور دوں گی، کیونکہ مجھے بہت، جب میں نے حجاب لیا مجھے بہت سے لوگوں نے ڈی ایم کیا کہ ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اپنے ہسبینڈس کو یہ بتانے کے لیے کہ انہیں حجاب، ہسبینڈ کے سامنے سٹینڈ لینے کے لیے کہ حجاب کے لیے منع کر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن یس، بٹ ان مائی کیس الحمدللہ جب میں نے جبران سے کہا کہ میں یہ مطلب سوچ رہی ہوں. جن ہسبینڈس کو پرابلم ہو رہی ہے حجاب سے وہ لوگ مسلمز ہیں. یس سر، بالکل مسلم ہیں. اور ایسے بھی بہت لوگوں کو میں جانتی ہوں جو سراؤنڈنگ میں ہیں، آئی نو دم پرسنلی، جو نہیں چاہتے کہ ان کی وائف حجاب لیں. یہ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ لبرل آدمی بھی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. یس سر، یہ ایکسٹریمسٹ ہے بالکل. اس کو اگر میری بیوی حجاب لینا چاہتی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کو کہنے والا لو یا نہیں لو. اگر وہ اتارنا چاہتی ہے تو بھی وہ جواب دے اللہ کو، رائٹ؟ بالکل بالکل بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی طرف آنے سے آپ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، آپ لبرل ہوتے ہوئے بھی ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ That's so true. بالکل لبرل ہو کے مجھے لگتا ہے آپ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. آپ ایکسٹریمسٹ چیزیں زیادہ کرتے ہیں. آپ کیونکہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو پھر وہ جب کسی چیز کی آپ کی لمٹ نہیں ہوتی وہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے. جب آپ کو، اور اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لمٹس میں رکھ سکیں، اور وہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے، وہ ہماری ہی زندگی کے لیے بہتر ہے. اگر وہ لمٹس نہیں ہوں گی تو ہم تو پتہ نہیں، انسان سے آئی تھنک جانور بننے میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بیوٹیفل بیوٹیفل. آپ بتا رہی تھی جبران. جی تو جبران، یس، تو جب میں نے جبران کو بتایا تھا اپنے حجاب کے بارے میں کہ میں حجاب لینا چاہتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے تھے کہ واقعی آر یو سیریس، تم نے لینا ہے، تم لوگی. اور انہوں نے یس، اور جبران نے مجھے کال کروائی کہ اپنے لیے حجاب آرڈر کرو کیونکہ ہم لاک ڈاؤن میں تھے اور جو ہے وہ obviously سب بند تھا، تو ہم لوگوں نے گھر پہ ہی آرڈر کیے تھے. تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ پھر آرڈر کرو تاکہ ہمیں کبھی جب نکلنا پڑے تو تمہارا حجاب ہو تمہارے پاس. May Allah keep you two together here and hereafter. آپ کا یہ کپل جو ہے وہ امیگریشن سے، گرین سگنل سے ہوتا ہوا جنت کی طرف یہیں سے جائے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ.
I think sir कुछ और भी messages आए पढ़ हैं। ले. महनूर कहती है कि सारी बातें एकदम सच, और इस सेशन से यकीनन बहुत फायदा होने वाला है सबको, आमीन। Inshallah. अच्छा, मेड पाटिल says, Jibran bhai, how did this decision impact your life and marriage? ये जिब्रान जवाब देंगे. Your posts are good. Saeed Sana कहते हैं कि this ayat changed my life, most beautiful ayat. Hafsa Ilyas says, without Allah in life, life itself feels worthless. And Allah ने रेहाब कहती है, most people are in the अपना time आएगा mode, अपना भी टाइम आएगा, अल्लाह जानता है वो आएगा या नहीं आएगा, या हमारी जिंदगी कितनी है. गुड्डू शानी says, अल्लाह से बड़ा कोई दोस्त भी नहीं. सुभान अल्लाह. थैंक यू सर, ये दोस्त वाली सिचुएशन एक्सप्लेन. सॉरी, रबा कहती है कि those very close to you may not always understand your journey and cause you to feel insecure about yourself. How do you stay strong in these circumstances? Do you self-talk to stay firm? Of course sir, self talk अगर कुरान की बात करें तो वो मैंने भी वही बताया कि वो जब अल्लाह मुझे जब कुरान की पढ़ रही होती हूँ या जब मैं समझने की कोशिश कर रही होती हूँ तो वो मुझे लगता है वो सेल्फ टॉक यही है मेरी, क्योंकि मुझे अब कुछ समझ नहीं आता कि मैं सेल्फ टॉक क्या करूं, या वो मुझे लगता है कि मुझे सब क्लियर हो रहा है और यही मेरी सेल्फ टॉक है, यही मुझे इतना स्ट्रांग बना देती है. और मैं वही बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ट्रस्ट मी, ये मैंने महसूस किया है. ये मैं अभी ये मेरी जो लाइफ में सब चीजें चल रही हैं, मैं इतनी स्ट्रांग हुई हूँ और मैंने ये डिसीजन लिया है, तो वो प्रैक्टिकली हो रहा है. ये सब कुछ मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल रही है. रबा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है अपने मैसेज में. यस सर. इसी सवाल में उन्होंने कहा कि जो जितने आपके करीब होते हैं वो उतना ही उनका इम्पैक्ट भी होता है आपको इनसिक्योर फील करवाने में, राइट? यस सर. क्योंकि मैं भी अगर देखता हूँ तो जो आपके करीबी लोग होते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये खुश होंगे या आपको कहेंगे यार वेल डन, आपको इनकरेज करेंगे, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है. और उसमें आपने तो जवाब दिया कि कुरान आपकी सेल्फ टॉक बन गया, बिकॉज अल्लाह आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन दे रहे हैं. बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह फ्रेंड्स रिप्लेस भी तो कर देते हैं, अल्लाह एनवायरनमेंट रिप्लेस भी तो कर देते हैं, आपको और नए लोग भी तो दे देते हैं जो आप जैसे होते हैं. सर मुझे अभी तक मुझे नए लोगों की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पड़ी है नए लोगों की जरूरत या नए दोस्त बनाने की जरूरत, क्योंकि मैंने उसके बाद मैं थोड़ा अपनी फैमिली से भी क्लोज हो गई हूँ, तो मुझे लगता है वही मेरे लोग हैं. हम आपस में ही हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ मेरी बहनें हैं, मेरी कजिन्स हैं, मेरी खाला हैं. हम आपस में डिस्कस करते हैं जब हम क्लास, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वो कुरान मेरे साथ सुने, तो हम आपस में सब लोग डिस्कस करते हैं चीजें, उसमें भी हमारा टाइम जाता है. तो हम उसमें शेयर करते हैं कि तुमने क्लास से क्या सीखा या तुमने कुरान से क्या सीखा, या शायद जो चीज मैंने मिस कर दी वो उन लोगों ने अच्छे से सुन ली होगी, या जो हम आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डिस्कशन करते हैं. तो अब मुझे लगता है कि मुझे और नए लोगों की जरूरत नहीं है. मुझे कुरान से तो अपनी फैमिली में ही दोस्त मिले हैं, फिर जिब्रान है और जिब्रान का भाई जो है साथ में, हम लोग आपस में घर पर डिस्कशन करते हैं. तो हमें फील ही नहीं हुआ, लाइक मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे पास दोस्तों की कमी हो गई. आई थिंक वो और करीब हो गए मेरी फैमिली. तो आपने अपना एनवायरनमेंट बना लिया ऐसा कि इसमें आप एंजॉय कर रही है. बिल्कुल. Maryam कहती है, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your intentions and your efforts, and may He bless you with istiqamat in your journey. रबा पूछती है आपसे कि is your husband on the same page as you? Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू में थोड़ी आपस में डिस्कशन. ऑब्वियसली आप दो पर्सनालिटीज हैं, मैं एक अलग पर्सनालिटी, वो एक अलग, सबकी दोनों की थॉट्स
कुछ ना कुछ डिस्कशन होती है, अलग होते हैं हमारी चीजें, लेकिन यहाँ आके हम लोगों का एक म्यूचुअल जो डिसाइड हुआ है वो यही हुआ है कि हमारा जो भी फैसला होगा, अगर हमने साथ चलना है पूरी लाइफ के लिए, तो वो कुरान के साथ ही होगा, कुरान के साथ ही हम अपनी आगे की जिंदगी गुजारेंगे। और ये हमने, जब मैंने डिसाइड किया और जब जिब्रान को भी मेरा डिसीजन समझ में आया, पसंद आया, तो हमने आपस में डिस्कस किया और अब हम दोनों इंशाल्लाह एक पेज पे हैं और हम दोनों इकट्ठे कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। वाह। आसिफ अफाक कहते हैं, इन्होंने एक कॉल शेयर किया है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का, जिनको हम सब जानते हैं कि उनकी लाइफ भी जो है वो बहुत डिफरेंट थी पहले, एंड उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई और फिर उन्होंने क्या किया वो तो हम सब जानते हैं। Sometimes the people with the worst past create the best future, ये उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। Wow, such a cool breeze listening to you and so much inspiration to reflect on our inner selves, ये हफ्सा कह रही है। I feel so light after listening to you. May Allah Ta'ala bless you with more and more peace of dunya. Subhanallah, मजा आ गया। Thank you so much. हमारा actually Mashallah, so proud of you, Anam. May Allah bless you both. Super blessed, Kainat. Your words are sinking into my heart. Very expressive. Noor was always on her face, mashallah. Uzaira कहती है कि what motivates you to be so consistent? Very good question. Because people suffer from consistency. They can't be consistent. आप consistent कैसे रहती हैं? Sir, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। फिर से बताऊंगी कि मैं इसलिए ब्लेस्ड रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं राइट लेफ्ट ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे अल्लाह ताला ने एक सही इंसान दे दिया जिसने मुझे सही तरीके से कुरान समझाया और पढ़ाया, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आपका डेली कुरान नहीं खुलेगा, आप तो एक दिन और दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। और शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले दिन से ही बहुत वो हो गई थी। मैं भी आप आहिस्ता आहिस्ता शैतान के चुंगल से बाहर निकलते हैं। तो एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर मैं थोड़ी सी डाउन, मतलब कुरान रेगुलर नहीं पढ़ी, थोड़ा सा गैप आ गया था। बट फिर मैंने खुद अपने आप को, खुद अपने अंदर अपने आप से बात की कि ये जो थोड़ी सी रोशनी मिली है इसको जाने नहीं देना। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कुरान डेली रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं होगी कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, तो फिर मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ चीजों को। तो आई थिंक डेली आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको बिल्कुल डेली। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी चीजें तो अंदर अंदर जा ही रही होंगी ना दुनिया की। बिल्कुल, और क्योंकि सर अनफॉर्चुनेटली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस प्रेशर में हम डेली रहते हैं, वो तो उसमें कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें अल्लाह के करीब करे। वो तो सब चीजें, और पूरे दिन में जो हम जिन हमने बाहर काम भी करना है, हमने फैमिली को भी देखना है, हमारी फैमिली में, इवन अपने घर में ही इतनी नेगेटिव चीजें लोगों के घरों में सुनने को मिलती हैं, रिलेटेड हिजाब, रिलेटेड योर कुरान, योर प्रेयर, सब चीजें, तो वो आपको वीक कर सकती हैं। तो लेकिन हमने उस पर वीक नहीं होना। अगर हम अपने आप को जब कुरान को डेली पढ़ेंगे और समझेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ऐसे ही जो है वो स्मूथ रखेगा आपकी लाइफ को इंशाल्लाह। तालिया कुरैशी कहती है, दुनियादारी में अपने से कमतर को और दीनदारी में अपने से ऊपर वालों को देखो। ये हदीस मुबारक है, ब्यूटीफुल हदीस। राबेल प्राचा कहती है कि the path you chose is the real path for success. Maryam says it is actually quite common. I think women around us find it harder to accept. I found my foreign colleagues more appreciative of my choice when I started hijab. Yeah, that's true. आसिफ कहते हैं, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, बिगेस्ट रिलीजन इज देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। महनूर कहती है, क्या बात है, और एक्सट्रीम चीजें दे आर लाइक पॉइजन। अच्छा जी, फिर माशाल्लाह, सुबह आमीन। मोमिना कहती है कि चेंजिंग हिज पाथ, as far as I know he has, right?
आई थिंक जिब्रान के साथ एक सेशन जिब्रान के इमरान साथ आवाज आ रही है? अलग से सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिब्रान की भी एक जर्नी रही है, तो आई थिंक वो भी किसी दिन हम करेंगे. Ahad Khan कहते हैं so happy for you Anam, you are an inspiration for so many people. निगत मलिक कहती है your best daughter ever Anam, mashallah. लव I'm यू very खाला. I'm very thankful to Anam Api and my sister Lare for bringing a Rahman Rahim in my life. Alhamdulillah. Eamon कहती है you're welcome Eamon. Sahar कहती है Rahman Rahim is the best platform. It helped me so much. Kinza कहती है अल्लाह आपको अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करे. आमीन. आगे चलते हैं. रेहाब कहती है in my life lots of friends got replaced and the ones who couldn't understand in the beginning returned, they came back. और फिर निगत कहती है कि I want to thank Anam beta and my daughter Lare for giving me a Rahman Rahim. मलिहा जब्बार कहती है I recently started understanding the Quran properly और मेरी लाइफ से मुताल्लिक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है. मुझे भी ज्यादा बेहतर समझ आ रही है दुनिया की भी. बिल्कुल. Trials and tribulation कुरान बेस्ट गाइड है. ओके. मुबीन जफर कहते हैं भाई प्लीज से something for PA watching you from Toronto. पाकिस्तान एयरफोर्स मेरा बड़ा के साथ and inshallah very soon I am making a new anthem. आप बहुत मजा आएगा. पाकिस्तान एयरफोर्स रॉक. अहमद अरसलान कहते हैं माशाल्लाह it's good to blow got out of that industry. फरहीद कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है. प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. क्या कह रही है आपके लिए कि you're so inspiring. फिर रेहाब कहती है pondering on the Quran in our practical life makes us more because we experience Allah's promises. That is very. सर एक मैसेज वो आ रहा है चौधरी उर्वा आई थिंक, वो कह रही हैं कि why ignore, I'm so angry. Oh my god, we are really sorry actually. मैसेजेस जो हैं वो बहुत जल्दी से ऊपर जा रहे हैं और काफी मैसेजेस जो मिक्स हो गए डीएम, सो प्लीज दोबारा से कमेंट कर दें अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कोई इम्पोर्टेंट बात आप करना चाहती हैं. सो वी आर रियली सॉरी. ओके. आगे है अस्सलाम वालेकुम. आप वीक में एक बार एक लाइव सेशन जरूर रखें और कुरान पाक के एक आयत मुबारका बयान करें. इंशाल्लाह. सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप कर सकते हैं हम हर वीक कुछ ऐसा प्लान कि हम जो है वो बिल्कुल. मुझे तो I'm feeling so inspired right now. Okay. आप जितना आप एंजॉय कर रही हैं जिंदगी को और जितने एस्पेक्ट्स आपने बताए हैं वो जाहिर है सारे तो मैं नहीं जानता था, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और एनीथिंग दैट कैन हेल्प पीपल, ये सब फैमिली है हमारी. पाकिस्तानी यूथ जहां भी दुनिया में है इनसे हमारा रिश्ता है. सो व्हाई नॉट. और अल्लाह का मैसेज पहुंचाने के लिए अगर वो आपको और मुझे चूज करता है तो इससे बड़ा कोई ऑनर तो जिंदगी में मिला ही नहीं कभी पहले. इससे बड़ा तो कोई ऑनर हो ही नहीं सकता कि यू रिप्रेजेंट अल्लाह. कैन देयर बी अ बिगर ऑनर? बिकॉज जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था अल्लाह को वो स्टार्स आर फॉरएवर. वो क़यामत तक के स्टार्स हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया. वो तो हर दौर में रहते हैं स्टार्स. तो अगर अल्लाह हमें भी एक छोटा सा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बिलीवर स्टार बना दे, नथिंग लाइक इट, राइट? बहुत सारे मैसेज और हैं अनम. वुड यू लाइक टू रीड देम और शुड आई रीड फॉर यू? वो जो जिनका उनका आया है मैसेज, आई डोंट नो क्या उसको. आई एम ट्राइंग हार्ड टू लेट गो ऑफ माय बॉयफ्रेंड, सो हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? just be practical. डिसीजंस कभी भी इमोशनल नहीं होने चाहिए, ये वाले डिसीजंस.
if something is not good for you, उसको जितना देर लटकाएंगे उतना आपके लिए और डेंजरस हो जाएगा. And if something is good for you, then own it. तो या तो शादी करें या फिर अस्सलाम वालेकुम भाईजान. You know, I think ये because बहुत जितनी कंफ्यूजन में रहेंगे आपको डिस्टर्ब होंगे. आप क्या कहेंगे यार? सर आई थिंक ये लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा डिसीजन है, और इस डिसीजन के लिए कुरान पे होना बहुत जरूरी है. अगर आपने अपनी जिंदगी को, अगर आप उस पेज पे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर भी वही सोचता है और जो आप सोचते हैं, तो उसके लिए आपका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि आप बात करें. और अगर आपको लग रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हैं तो बस फिर जाने दें, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज करते हैं. आई थिंक वो ज्यादा बेहतर है. We should probably do the next session on relationships and we can do that. Yes. marriage, right? Marriage and spouse search, and how to do this, and how to control your emotions, and how to let go. I think we have to do it. Yeah. Or and my wife is looking at me. So what would you like? I think. Talk to us. Stop ignoring. Okay, you have talked to them, right? अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया है. जिन्होंने कंसिस्टेंसी की बात की थी, वो कह रही है कि I am not consistent. Rabel Pracha. So can you guide me about consistency? क्या कहेंगी अनम? सर मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैं आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ, और वो यही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं अपनी क्लास लेती हूँ और जब मैं क्लास में कुरान सुनती हूँ और उसको मैं जब एक्सपीरियंस करती हूँ लाइफ में या अपने डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करती हूँ, तो उसी से ही मैं जो है वो एक स्मूथ लाइफ गुजारती हूँ, और वही मुझे एक पेज पे रख रहा है. मुझे लग रहा है कि मेरे लिए यही सोल्यूशन. आप क्या कहेंगे? मैं राबेल से ये कहना चाहूंगा कि जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है या जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, फायदा होता है, आप वहां हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं. किसी को आप कारोबार करने में या पैसा कमाने में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार कंसिस्टेंटली पैसा कमाओ, क्योंकि वो पहले से ही कंसिस्टेंट होगा. सो इसलिए अनम की बात को मैं इंडोर्स करूंगा कि जिस दिन कुरान आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा, जिस दिन कुरान आपको हर स्टेप पे राइट एंड रॉन्ग, अच्छा बुरा, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किस कंपनी में बैठना है, किस कंपनी में नहीं बैठना है, कौन सा फैसला अच्छा है, कौन सा नहीं है, जिस दिन आपको इस कायनात का सबसे बड़ा साइकाइट्रिस्ट और इस कायनात का सबसे बड़ा मास्टर और मोस्ट वाइजेस्ट जात अल्लाह की, जिस दिन उसके साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत भी आपकी कंसिस्टेंसी आपको नहीं हटा सकती. बिकॉज यू नो कि इसको छोड़ा तो मैं बिखर जाऊंगी, इसको छोड़ा तो मैं क्लूलेस हो जाऊंगी, इसको छोड़ा तो मैं फियर इनसिक्योरिटी में आ जाऊंगी. सो एक दफा जो अनम ने कहा है कि आप कुरान को जानने की कोशिश करें विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कंडीशन, सिर्फ जाने. अगर दोस्ती हो गई तो फिर आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कंसिस्टेंसी का. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, दैट्स ट्रू. क्योंकि उसके बगैर जब आप डिसाइड कर लेते हैं लाइफ में कि आपने करना ही है, जैसे हम अपनी जिंदगी के दूसरे फैसले लेते हैं तो हम बड़े उस पे पक्के रहते हैं. हम जब अपनी बाकी के लाइफ के दूसरे डिसीजंस जो लेते हैं जिसमें लोगों की खुशी ज्यादा शामिल होती है, तो जब हम वहां इतना ज्यादा सोचते हैं, उन फैसलों को लेने में इतनी कोशिश करते हैं, उस सब चीजों को ठीक रखने में कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ आके हम वीक हो जाते हैं. यही हम अल्लाह ताला के मामले में जो हमें सब कुछ मिल रहा है, मैं बोलती हूँ कि हम कितने नाशुक्र हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, हम यहाँ आके वीक हो जाते हैं जहाँ हमें वीक नहीं होना चाहिए. देखिए, एक नशाई को कंसिस्टेंट ड्रग चाहिए होती है, उसको कंसिस्टेंट नशा चाहिए होता है ना. इसी तरह ईमान भी ऐसा नशा है कि वो आपको इतना
हल्का फुल्का बटरफ्लाई की तरह और रिलैक्स कर देता है कि फिर आप चाहते ही नहीं है कि ये कभी आप वापस जाओ उस रेस्टलेसनेस में, वो डिप्रेशन में, और वो जो हर वक्त आप कह रही थी ना तलवार लटकी हुई होती है, तो फिर आप कभी भी वापस नहीं जाना चाहेंगी. आप कहेंगी कि भाई मैंने ऐसे ही रहना है, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ. अब मैं कॉफी पी रही हूँ, मैं कॉफी मशीन खरीदने की फिक्र नहीं है मुझे कि मैं मशीन भी खरीद लूं. यू विल एंजॉय मोर. स्किन मैटर्स. कहते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ वसवसा. वसवसे आते थे आपको ना? शैतान का वसवसा, राइट लेफ्ट. और वसवसा सिर्फ वो नहीं होता कि किसी भी तरह से आ सकता है. आपकी फैमिली से आ सकता है, आपके दोस्तों से आ सकता है, आपके दिमाग में कोई भी बात आ सकती है जो आपको वीक कर सकती है. कि पहले कौन सा तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले तुम कौन सा कोई बुरा इंसान थी, अच्छे काम कर रही थी, मॉडलिंग ही कर रही थी, लेकिन तुम चैरिटी कर रही थी, तुम लोग तुमसे खुश थे, लोगों का ख्याल रखती थी, इस तरह की चीजें. तो अब तुम कुरान रखो, पढ़ लो, लेकिन क्या इसमें क्या मतलब, अगर हिजाब नहीं भी लोगी तो क्या हो जाएगा. तो इस टाइप की जो चीजें आती हैं दिमाग में. लेकिन फिर वही बात, जब अल्लाह ताला आपका तवक्कल, अल्लाह ताला पे आपको तवक्कल हो जाता है, और जब आपको इतना यकीन आ जाता है और आप जब आयत पढ़ लेते हैं, असल में सिर्फ अल्लाह पे ईमान यही तो है कि जब आपने पढ़ लिया तो उस पे बस कोई और सवाल ही नहीं है. बस आपने पढ़ लिया तो वो लास्ट है, और वो करना ही है. देयर इज नो ऑप्शन. कि जब आपने पढ़ लिया तो अल्लाह से मोहब्बत तो यही है कि फिर वो आपका नजर भी आप कर रहे हैं. आपने वो एक चीज और भी लिखी उन्होंने कि द मोर क्लोज आई ट्राई टू गेट टू इस्लाम द मोर आई गेट वसवसा. उसकी बहुत बड़ी वजह ये है स्किन मैटर्स कि हमारी, देखिए वसवसा जाता है कम्युनिकेशन से. अगर मेरी अनम से कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं वो क्या सोच रही है, उसका फोन क्यों नहीं आया, या वो हो सकता है ये सोच रही हो. मैं गुमान करता रहूंगा. लेकिन जैसे ही मैं अनम को कॉल कर लूंगा तो अनम कहेंगी कि वो एक्चुअली मैं बिजी थी इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी. तो मेरा वो सारे वसवसे क्लियर हो गए कि कोई ऐसी बात नहीं है, शी इज ओके विद मी. तो वसवसा याद रखें हमेशा कम्युनिकेशन से दूर होता है. हम नमाज पढ़ते हैं, हम दूसरी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता. सो इसलिए जब आप कुरान के जरिए रिश्ता बनाएंगे अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, क्योंकि अल्लाह के करीब होने में वसवसा नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं. वसवसा आता ही तब है जब हम करीब नहीं होते, क्योंकि शैतान हमें करीब होने नहीं दे रहा, वो रास्ते में आया होगा. ट्रू. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकते उस चीज से बढ़कर किसी चीज के जरिए जो उसके अंदर से निकली है, यानी अल कुरान. तो जिस दिन आप कुरान को समझ के अल्लाह के को जानते हुए रिश्ता बनाएंगे, अल्लाह हमेशा के लिए वसवसे दूर कर देगा, क्योंकि वो हर वक्त आप अवेलेबल होगा. जैसे अनम ने आयत पढ़ी कि यू रिमेम्बर मी आई रिमेम्बर यू. जब वो आपको बात करो वसवसा कैसे, तो टेक दिस रूट. आप कुरान के जरिए रिश्ता बनाए, कभी आपको वसवसा नहीं आएगा. और अदरवाइज आप नेक्स्ट सेशन में यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन. यस इंशाल्लाह सर. आई थिंक हमारा सेशन जो है आज का, आई होप अच्छा रहा, और बहुत से लोगों को और इसमें नियत से ज्यादा हो गए. तो यस, और उसमें नियत यही थी कि अगर किसी भी मेरी किसी बहन को, भाई को इससे कोई इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर फैसले ले सकते हैं, देन व्हाई नॉट. तो मैं अगर उनके किसी काम आ सकूं तो इससे बड़ी आई थिंक कोई और बात नहीं हो सकती. और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं. विल अनाउंस कि हम नेक्स्ट टाइम सब, आप आई थिंक बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम एक और सेशन करें, तो आई विल डू इट इंशाल्लाह. अनब यू हैव रिफ्रेश्ड माय ईमान, और आपने और रीअश्योरेंस दी है कि अल्लाह के बंदे एक तरह ही सोचते हैं और वो स्टैंड लेते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो पेशेंट होते हैं और वो रोल मॉडल बनते हैं. और यही मैंने आज सीखा है कि वन शुड बी क्लियर, वन शुड रिव्यू,
one should take a firm decision, and one should also decide कि जिंदगी डामाडोल गुजारनी है या क्लैरिटी के साथ गुजारनी है. ये मैंने आज सीखा आपके सेशन से. थैंक यू सर. और मैं आपसे इतना कुछ सीखा हुआ है ऑलरेडी, ये जो बहुत सी बातें वो आप ही से सीखी हुई है बेशक. और थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया इन सब ब्लेसिंग और सब दुआओं का. इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ जो भी होता है प्लान करते हैं तो हम डेफिनेटली फिर उसे अनाउंस. I'm available. आप just let me know and inshallah we will. और मैंने कुछ मैसेजेस देखे थे, but next time inshallah I will definitely do my nasheed for them. कुछ आपके दोस्तों ने हम के लिए कहा था, तो मैं next time inshallah जरूर पढ़ूंगा. अभी तो पढ़ते प्लीज. मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरी हालत भी थोड़ी सी आज टाइट है. I had an attack of flu yesterday. I want to recite something, for you and to honor your transformation, mashallah. I think the last verse. No. I'll recite that verse. जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है. जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असर सुजूद है. न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है. तो रास्ते है जुदा जुदा ये मामला कोई और है. सर आप इमोशनल कर देते हैं. थैंक यू सो मच. Next time I'll recite the whole thing, inshallah. इंशाल्लाह सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Assalamu alaikum and assalamu alaikum everyone. Have a great Ramadan, whatever remains. Thank you. Assalamu alaikum. ओके मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और इंशाल्लाह. हेलो सदफ. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ हार्ट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी कोई सेशन मैं प्लान करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम कब वो नेक्स्ट सेशन जो है नजम सर के साथ रख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.